Exam dost, success ka host, सैनिक नवोदय में top most. Hello and welcome everybody. Welcome to the session on University in Diversity, or Many in the One. Oh, grant me my prayer that I may never lose the bliss of the touch of the one in the play of the many. Rabindranath Tagore. The principle of unity in diversity, which has always been normal to India, and its fulfillment the fundamental course of her being and its very nature. The many in the one would place her on the sure foundation of her Swabhav and Swadharma. Sri Aurobindo. So basically, India is a land of multi-religion, or unity in diversity. Unity in diversity is our special character. Now, what is meant by unity in diversity in the Indian scenario? What aspects of India's diversity are the most striking, and how do we make out the unity underlying the diversity? Let us begin this topic. Some basic facts we will understand. A rich biodiversity. If you travel through India by train, that we have seen in the geographical diversity in India, you will notice not only changing landscapes but also many different types of dresses and food. You will hear different languages, familiar and unfamiliar, and see different scripts on the way, even within your own region. You will often come across people from other parts of India with different customs and traditions. तो बता रहे हैं कि अगर आप कहीं ट्रैवल करें तो आपको अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग रिचुअल, अलग अलग कल्चर फॉलो करने के लोग मिलते हैं. इवन आपको अपने रीजन में भी कई सारे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के लोग दिखाई देते हैं. दिस इज इंडियाज रिच डाइवर्सिटी एंड इट इज़ यूजुअली द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक विजिटर्स ऑफ आवर कंट्री. तो जब भी कोई विजिटर हमारे देश में आते हैं तो ये पहली चीज़ उनको दिखाई देती है कि इंडिया में बहुत भांति भांति के अलग अलग तरह के लोग रहते हैं. विथ ओवर 1.4 बिलियन इनहेबिटेंट्स, अबाउट 18% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे. टोटल पॉपुलेशन इंडिया की 1.4 बिलियन है, जो कि वर्ल्ड का 18% होती है. सच डाइवर्सिटी इज नॉट सरप्राइजिंग. इन द लेट 20th century, the Anthropological Survey of India, a national organization, conducted a massive survey called People of India Project of 4,635 community across all the states of the country. It counted 325 languages using 25 scripts. तो हमारे देश में टोटल 325 अलग अलग लैंग्वेजेस पाई जाती हैं और 25 अलग स्क्रिप्ट्स पाए जाते हैं. टोटल हमारे पास 4,635 कम्युनिटीज़ हैं. It also observed that many Indians may be called migrants in the sense of people not living near their बर्थ प्लेस और विद देयर ओरिजिनल कम्युनिटी. और कई ऐसे लोग हैं जो माइग्रेंट्स हैं, जो अपने ओरिजिनल कम्युनिटी के साथ नहीं रहते हैं, अपने बर्थ प्लेस पे नहीं रहते हैं, जिन्होंने अपने लोकेशन को चेंज कर दिया है. सो दैट वाज द सर्वे डन बाय एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट. यहाँ पर भी शायद क्वेश्चन आपको बन सकता है. Let's explore. As a class activity, they are taking to make list of the birthplace of at least 5 classmates and the birthplace of their parents, the students' mother tongues and other languages known to them. Discuss the result in terms of diversity. तो कह रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए, 5 अलग अलग लोगों के साथ उनका बर्थ प्लेस क्या है, उनके पेरेंट्स का बर्थ प्लेस क्या है. इससे आपको डाइवर्सिटी की थोड़ी बेटर समझ में आएगी. While diversity is indeed beautiful, making sense of it is not so easy. Over a century ago, the British historian Vincent Smith wondered how, in the face of such bewildering diversity, can history of India be written. कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है यहाँ पर, इसकी हिस्ट्री लिखी कैसे गई? इतनी भांति भांति के अलग अलग तरह के लोग हैं, कैसे इनकी हिस्ट्री? द आंसर टू द क्वेरी इज फाउंड इन द फैक्ट दैट इंडिया ऑफर्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी. नाउ व्हाट इज मेंट बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी? हाउ शैल वी परसीव एंड एक्सप्रेस दिस यूनिटी or the many in the one? To answer this question, we will explore few dimensions of Indian life. तो भारत की जो जिंदगी है, जो लाइफ है, उसको हम समझेंगे, देखेंगे. Food for all. Some of you will have eaten food from different regions of India. The number of different dishes and preparations you can taste in India must be in their thousands, if not lakhs. Yet certain food grains are common to almost every part of the country. Cereals such as rice, barley, wheat. कहना है कि अलग अलग जगह में अलग अलग डिशेस बनते हैं, उनको बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ कॉमन जो पार्ट है, जैसे सीरियल कॉमन है, राइस, बार्ली, व्हीट कॉमन है, मिलेट कॉमन है, पर्ल मिलेट बाजरा बोलते हैं, सोरगम ज्वार बोलते हैं, ये सब कॉमन है.
फिंगर मिलेट रागी को बोलते हैं, एंड पल्सेस सच एज वेरियस काइंड ऑफ दाल। तो ये कॉमन जो सीरियल्स रहते हैं ये हर जगह। अब यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा चार्ट बनाकर बता दिया है कि फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सीरियल एंड पल्सेस फ्रॉम डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। तो साउथ इंडिया से देखो हमें पोन्नी राइस मिलता है, कोल्लम राइस मिलता है, मिलेट मिलता है, पोन्नी राइस मिलता है, सोना मसूरी मिलता है, ये भी टाइप का राइस है, ज्वार मिलता है, अरहर दाल हमको मिलती है, अरहर दाल और भी महाराष्ट्र में है, ये थोड़ा तेलंगाना है, मेज़ है, ग्राम है, मेज़ अलग अलग जगह पे आप देख सकते हैं, मिलेट है, चिकपी है, चना दाल है, मसूर दाल है, मूंग दाल है, राइस है, ये भी राइस है, इधर ज़्यादा राइस का दर ज़्यादा चल रहा है, पिजन पी है, वाइट लोबिया है, राजमा है ना, अलग अलग तरह के हमें दिखाई यहाँ पर दे रहे हैं। ग्राम्स, ऑल दीज आर कॉल्ड स्टेपल ग्रेन्स, इन्हें हम कहते हैं स्टेपल। स्टेपल मतलब जो रेगुलर हम यूज़ करते हैं, बिकॉज दे आर बेसिक फूड फॉर मोस्ट इंडियंस। Similarly, some common spices such as turmeric, cumin, cardamom, ginger, they are also used throughout the country. We could continue this list with some common vegetables, common oils. So we see how the same ingredients, unity, can be used in a number of combinations, diversity, to prepare an endless variety of dishes. तो कह रहा है इन्हीं कुछ चीज़ों से हम अलग अलग तरह के डिशेस बना सकते हैं। सेम इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे मतलब यूनिटी, और वेराइटी बनाएंगे मतलब डाइवर्सिटी। दैट इज़ हाउ दे आर ट्राइंग टू डिफाइन इट। Next, textiles and clothing. Every region and community in India has developed its own style of clothing and dresses. Yet we notice a commonality in some traditional Indian dresses, irrespective of the material used. An obvious example is a plain length of cloth called the sari. तो कह रहा है कि अलग अलग सबका ही स्टाइल है, अलग अलग लोकेशंस पे लोग अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कपड़े, लेकिन एक कॉमन जो सबकी सी साड़ी सभी लोग पहनते हैं। A type of clothing worn in most part of India and made from different fabrics, mostly cotton or silk, but nowadays synthetic fibers too, like Banarsi, Kanjivaram, Paithani, Patan Patola, Muga, Mysore are some of the famous type of silk sarees. ये कॉमन सिल्क की साड़ीज हैं। देर आर मैनी मोर काइंड ऑफ कॉटन साड़ी, ऑल्दो द अनस्टिच्ड पीस ऑफ क्लोथ कम इन हंड्रेड्स ऑफ वेराइटी। तो ये बता रहे हैं कि कॉमन जो है वो साड़ी रहता है। सी हियर स्टोन रिलीफ ऑफ अ वुमन इन अ साड़ी फ्रॉम वैशाली टुडे इन बिहार। तो ये वैशाली का एक ये स्टोन में हमें स्कल्पचर नहीं कार्विंग मिली है, जिसमें ये इन्होंने साड़ी को पहना हुआ है। तो अलग अलग ये वैरायटी की बात करें, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट मेथड्स ऑफ वीविंग। वीविंग हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया है in the topic fiber to fabric, and designing. Some design are part of the cloth while others are printed after the cloth is woven. तो कुछ तो हम वीविंग करते समय डिज़ाइन बना देते हैं और कुछ प्रिंटिंग के बाद हम बाद में प्रिंट करते हैं, वीविंग के बाद हम प्रिंट करते हैं। फाइनली देर आर एंडलेस वेरिएशन इन द कलर विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेनी काइंड ऑफ पिगमेंट्स, और उसके बाद हम इसमें अलग अलग कलर देते हैं। द साड़ी हैज़ अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री। दिस स्टोन रिलीफ जो हमने पहले देखा फ्रॉम वैशाली टुडे इन बिहार गोज बैक अ फ्यू सेंचुरी BC। आप ये राइट साइड में देख सकते हैं कितने उसने पहले उसकी वीविंग की है और बाद में उनको उन्होंने कलर किया। कलरफुल ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल वगैरह। नेक्स्ट, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इंडिया प्रोड्यूस्ड द फाइनेस्ट कॉटन इन द वर्ल्ड एंड इंडियन टेक्सटाइल्स वर एक्सपोर्टेड एज फार अवे एज यूरोप। इवन जो ब्रिटेन की रानी क्वीन विक्टोरिया वो भी इंडिया के बनाए हुए सिल्क और कॉटन के कपड़े पहन चुकी थी, वो भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, उसके कलर को बहुत पसंद करती थी। वन ब्यूटीफुल टाइप ऑफ प्रिंट इन कॉटन कॉल्ड शीट became so popular in 17th century Europe that the sale of some European dresses dropped sharply. ये हमारा जो छींट जो पैटर्न है इतना फेमस हो गया था कि यूरोप के कपड़ों से ज़्यादा हमारे जो एक्सपोर्ट होते थे वो ज़्यादा बिकता था। Eventually to protect their own product, England and France decided to ban the import of छींट from India. और ये इतना ज़्यादा फेमस हो गया था, ब्रिटेन के लोग यूरोप के लोग इतना ज़्यादा इसे पसंद करते थे कि वो ब्रिटेन के बनाए हुए और इंग्लैंड के बनाए हुए जो कपड़े थे वो नहीं लेते थे, इसीलिए उनको छींट को वहाँ पे बैन करना पड़ गया, क्योंकि वो उनका मार्केट ही बिगड़ गया था, वो उनके कोई कपड़े खरीदता ही नहीं था, सबको इंडियन जो एक्सपोर्ट था, इंडियन जो प्रिंटेड कपड़े होते थे वो पसंद आता था। रिलीफ का बताया, रिलीफ क्या होता है? अ डिज़ाइन दैट स्टैंड्स आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ पैनल विच मे बी ऑफ स्टोन, वुड, सिरामिक और एनी अदर मटीरियल। रिलीफ क्या है? एक स्टोन के ऊपर उभरा हुआ जो स्ट्रक्चर होता है उसे वो रिलीफ कहेंगे। देयर आर मेनी वेज ऑफ वेयरिंग द साड़ी एज दे वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर और फ्रॉम वन कम्युनिटी टू अनदर। इन फैक्ट न्यू वेज ऑफ ड्रेपिंग इट आर स्टिल बीइंग इन्वेंटेड, बट इन द एंड इट इज अ सिंगल ड्रेस द साड़ी इन पास्ट सेंचुरीज। तो अभी आज साड़ी पहनने के अलग अलग तरीके हैं, आज भी अलग अलग बन रहे हैं, हर एक कम्युनिटी के लोग साड़ी को अलग अलग तरीके से पहनते हैं, आज भी इसमें कई नए इनोवेशंस हो रहे हैं, लेकिन ये एक सिंगल ड्रेस था जो हमारे पास्ट में लोग पहनते थे। अब हियर यू कैन सी वुमेन ऑफन पुट द साड़ी इन मैनी यूजेस बियॉन्ड दैट ऑफ ड्रेस। तो पहनने के अलावा भी इसके बहुत सारे काम किए, जैसे बच्चे को दिया है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी कलेक्शंस है उसको ले रही है। Several India simplicity, economy and the diverse ways in which it is worn. In addition, women often put the sari to many uses beyond that of a dress. These 6 pictures show
द क्रिएटिव यूजेस ऑफ साड़ी, ये अलग अलग तरीके से यूज किया है। ब्यूटीफाई करने के लिए भी आप इसको एमिलियोरेट कर सकते हैं। ये यहाँ पर कुछ क्लीनिंग वगैरह है, ऊपर इसने सर पे एक सपोर्ट के लिए यूज़ कर लिया है, यहाँ सोने के समय कवर की तरह यहाँ पे आंचल के जैसे ले लिया है, कवरिंग के जैसे ले लिया है। नाउ फेस्टिवल्स गैलोर, देयर इज अ immense variety of festivals in India. You may have noticed that a few common ones are celebrated across India almost at the same time, though they have different names. We will take just one example, Makar Sankranti, as it is arriving, which marks the beginning of the harvest season. मकर संक्रांति से हार्वेस्ट सीजन की शुरुआत होती है और उसको अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग नाम से हम बुलाते हैं। जैसे आप नॉर्थ में देखेंगे मनाया जाता है, देखो आप यहाँ पर देखो जम्मू एंड कश्मीर में इसका नाम शिशुर संक्रांत कहा जाता है, पंजाब वाले रीजन में इसे मघी या लोहड़ी का, उत्तर प्रदेश में इसे खिचड़ी पर्व कहा जाता है, सेंट्रल एमपी नागपुर सेंट्रल रीजन में इसे मकर संक्रांति कहा जाता है, गुजरात में आप देखोगे इसको उत्तरायण कहा जाता है, महाराष्ट्र में मकर संक्रांति कहा जाता है, थोड़ा नीचे आप जाएंगे बेंगलोर वगैरह में इसे मकर संक्रमणा कहा जाता है, नीचे आप केरल की तरफ और थोड़ा बचेंगे कोस्टल रीजन में तो इसे मकारू विलक्कू कहा जाता है, तमिलनाडु में पोंगल कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तमिलनाडु में पोंगल कहा जाता है, क्योंकि बाकी सब तो आप पकड़ लोगे क्योंकि मकर संक्रांति मकर वर्ड है, गुजरात में उत्तरायण है, बाकी सब में पंजाब में लोहड़ी कॉमन है तो शायद उससे ना पूछे, शिशुर संक्रांति भी आप पकड़ लोगे कि मकर संक्रांति है, लेकिन पोंगल का थोड़ा डिफिकल्ट, तमिलनाडु में पोंगल, आंध्र प्रदेश में पेड्डा पंडुगा, उड़ीसा में मकरा संक्रांति, बंगाल में इधर ये जो रीजन है बंगाल का पे पौष संक्रांति, और ये असम का जो रीजन है यहाँ माघ बिहू। तो ये एक ही मकर संक्रांति है, उसके अलग अलग नेम है। डिफरेंट नेम्स ऑफ सिमिलर फेस्टिवल अक्रॉस इंडिया। Now during October November many major festival take place in India. You can make a list of all these. इसमें दिवाली है, दुर्गा पूजा है, छठ पूजा है, अलग अलग तरह की पूजा है जो इस पीरियड में आती है। An epic spread. Literature offers us another fine illustration of unity in diversity. Indian literatures are extremely diverse and among the most abundant in the world. Over centuries, despite difference in languages, technique, they have shared important theme and concern. Who has not heard of Panchatantra? For example, this collection of delightful stories with animals as the main character teaches us important life skills. So पूछ सकते हैं कि पंचतंत्र में main character कौन है? तो animals हैं। क्या सिखाते हैं? लाइफ स्किल सिखाते हैं। द ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट एट लीस्ट 2200 ईयर्स ओल्ड। ओरिजिनली इसे संस्कृत में लिखा गया था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, 2200 साल ये पुराना है। बट इट्स स्टोरीज हैव बीन इन ऑलमोस्ट एवरी इंडियन लैंग्वेज, पर हर इंडियन लैंग्वेज में इसे लिखा गया। इनफैक्ट दे हैव ट्रैवल्ड वेल बियॉन्ड इंडिया ऑल द वे टू साउथ ईस्ट एशिया, द अरब वर्ल्ड एंड यूरोप। ये हर पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इंस्पायरिंग न्यू कलेक्शन ऑफ स्टोरीज ऑन द वे. It is estimated that about 200 adaptations of the Panchatantra exist in more than 50 languages. This illustrates show how one collection of stories has become many. The most striking case, however, it is that of India's two epics. सबसे जो इंडिया के जो दो epics रहे वो रामायण और महाभारत रहे. These two long Sanskrit poems, which together might fill some 7,000 pages in their original version, narrate the stories of heroes who fight to re-establish dharma. In the Mahabharata, the Pandava, with Krishna's help, fight their own cousins, the Kauravas, to recover their kingdom. In the Ramayana, Rama, with the help of his brother Lakshman and of Hanuman, defeats the demon Ravana, who had kidnapped his wife Sita. These stories contain many shorter ones that focus on value, constantly ask questions about what is right and what is wrong. तो ये कह रहा है कि धर्म के रास्ते पर ये हमें चलना सिखाता है. Epic है a long, generally narrating the adventures of heroes and other great figures of the past. इसे हम epic कहते हैं. जो रामायण और महाभारत ये हमारे दो epic हैं. महाकाव्य भी आप इसे बोल सकते हैं. You can see a painting depicting a major episode from the Ramayana, 18th century, हिमाचल प्रदेश. यहाँ पर ये पेंटिंग बनाकर वो दिखा रहे हैं रामायण में. Next, for more than 2 millenniums, these two epics have been translated or into regional literatures in India and beyond. In addition, there are countless folk versions of them. A few years ago, a scholar conducted a survey in Tamil Nadu alone and counted about 100 versions of Mahabharata that have come down to us in folklore forms. Imagine what the number might be for the whole of India. तो कह रहे हैं कि सिर्फ महाभारत के 100 वर्जन्स थे अलग अलग. In fact, many communities have their own versions of Ramayana and Mahabharata. They have also preserved legends connecting their own history with these epics.
दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो को भी अलग अलग फॉर्म उन्होंने बनाकर रखे हुए इंडिया इन इंडिया, सच एज भील्स ट्राइबल कम्युनिटी का नाम है, द गोंड्स, द मुंडाज एंड मैनी मोर। मोस्ट ट्राइब्स ऑफ इंडिया, northeast and Himalayan regions including Kashmir have their own version of one or the other of the two epics or both। तो कई लोगों ने अपने खुद की भी महाभारत में थोड़े बहुत अपने हिसाब से लिखा हुआ है। These tribal adaptations are transmitted orally along with legends on how the heroes of Ramayana and the Mahabharata, generally any or all of the five Pandava with their wife Draupadi, but also sometimes their cousin and adversary Duryodhana, visited the tribes' respective regions। तो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि रामायण में जो राम जी थे, जो सीता जी थे, वो कैसे उनके एरिया में रहते थे। ऐसे बताया जाता है, जैसे भील एक ट्राइब है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रीजन में पाया जाता है। तो वो लोग बताते हैं कि जब राम भगवान जो थे, जब वो अपना वनवास का पीरियड में स्पेंड कर रहे थे, तो उस समय वो छत्तीसगढ़ में ही आकर छुपे हुए थे, रह रहे थे। तो सब लोगों ने अपने हिसाब से अपनी अपनी कहानियाँ बनाई हुई हैं। द एंथ्रोपोलॉजिस्ट K.S. सिंह डायरेक्टेड द पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट we referred to earlier. In the case of the Mahabharata, he observed that there is hardly a place in the country which the epic heroes such as Pandava did not visit according to the folklores। तो कह रहे हैं ऐसे इंडिया में कोई भी जगह नहीं थी जहाँ पर राम जी अपने पीरियड में जो पांडव थे, जो अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, ये लोग थे, ऐसी कोई भी इंडिया की जगह नहीं थी जहाँ पर वो लोग नहीं गए थे। एंड द सेम में भी सेड ऑफ रामायण, और रामायण के बारे में भी वो यही बात कहते हैं कि राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, ये लोग पूरे के पूरे इंडिया में ट्रैवल कर चुके थे। ओवर द सेंचुरीज, परहैप्स मोर देन एनी अदर टेक्स्ट, दीज टू एपिक्स क्रिएटेड अ डेंस वेब ऑफ कल्चरल इंट्रैक्शंस अक्रॉस इंडिया एंड मेनी पार्ट्स ऑफ एशिया। दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि भले ही हम अलग अलग कल्चर को मानते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के, लेकिन महाभारत और रामायण को हम सभी लोग मानते हैं। To further illustrate the theme of this chapter, we could have continued our journey and turned to more facets of Indian culture. Unity in diversity को समझाने के लिए हम इस चैप्टर में और भी एग्जाम्पल हम डाल सकते थे, ऐसा है कह रहे हैं। In India's classical arts, including classical architecture, both diversity and unity are easily noticeable. We'll study these fields through the art color area. In the end, we should remember that Indian culture celebrates diversity as an enrichment but never loses sight of the underlying unity which nourishes their diversity। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी जो कंट्री है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी परफेक्ट एग्जाम्पल है। समरी ऑफ द चैप्टर, टॉपिक में बहुत बेसिक चीज़ें थी, बहुत तो कुछ डिटेल में नहीं था, रामायण और महाभारत के बात हो रही थी, पर इससे भी एक आधा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है।